محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اللہ ولی نیک عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے 3 عورتیں کتیا بن گئی۔ 3 عورتوں کے کتیا بننے کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی جگہ ایک اللہ والے تھے جن کی ایک ہی بہن تھی جو کسی دوسرے گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ وہ بھی انہی کی طرح اللہ کی عبادت کرنے والی خاتون تھی۔ اللہ والے کبھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گاؤں بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں نہیں جا سکے تھے۔ اس اللہ والی عورت کے 3 بیٹے تھے جو کہ جوان تھے اور ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھی۔ انسان خود تو اچھا ہوتا ہے لیکن اکثر اس کا سامنا کسی اچھے انسان سے نہیں ہوتا، اور یہی اس ساس کے ساتھ بھی ہوا۔ اس اللہ کی نیک بندی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی بہویں بہت ہی زیادہ چالاک اور شاطر تھی۔ جب اپنے کمرے میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی، ان تینوں بہوؤں کو یہ بہت برا لگتا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتی ہے، جب دیکھو گھر میں بڑی روٹیاں توڑتی رہتی ہے، جبکہ وہ گھر کا سارا کام بھی کر دیا کرتی تھی، اور ان کی عادت تھی کہ وہ صدقہ وغیرہ بہت زیادہ دیا کرتی تھی۔ جب کوئی فقیر دروازے پر آتا، آواز دیتا، کبھی وہ عورت اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی، اور یہ بات تینوں بہوؤں کو بہت زیادہ بری لگتی تھی۔ انہیں بہت غصہ آتا تھا، لیکن وہ نیک عورت اپنے پڑوسی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ اپنی بہو سے کہتی کہ تم لوگ تھوڑا کھانا زیادہ بنایا کرو، کیونکہ مجھے پڑوسیوں کو بھی کھانا دینا ہوتا ہے۔ وہ لوگ دل ہی دل میں اپنی ساس کو بہت زیادہ برا بھلا کہتی، اسے نفرت کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کو صبح صبح اٹھا دیتی اور کہتی کہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھو، گھر کی صفائی کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ ان بہوؤں کو عبادت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اپنی ساس کے کہنے پر مجبوراً وہ کبھی کبھی عبادت کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے اپنی بہو کو جگایا اور کہا کہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کو اچھی طرح سے صاف کر لو، آج میں بہت سارے لوگوں کو دعوت پر بلا رہی ہوں۔ تو بہو کہنے لگی کہ کیا کوئی بڑے لوگ آنے والے ہیں؟ اس ساس نے کہا کہ نہیں، میں بڑے لوگوں کو دعوت پر نہیں بلا رہی ہوں، بلکہ یہاں کے جو غریب ہیں وہ ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس گھر میں بڑا سا دسترخوان لگے گا اور تم تینوں کو مل کر ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ دیکھو بہو، جب ہم غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر ان بہوؤں کو غصہ آنے لگا کہ یہ کیا عجیب سی مصیبت سر پر آ پڑی ہے۔ جب سے اس گھر میں ہم آئے ہیں بس کھانا ہی پکاتے رہتے ہیں، کبھی غریب لوگوں کو بلا لیتی ہے، کبھی یتیموں کو بلا لیتی ہے، کبھی بیواؤں کو جمع کر لیتی ہے، کبھی کسی مسکین کو لے آتی ہے، کبھی کسی فقیر کو۔ یہ بڑھیا ہر وقت ہمارے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے جو یہ اتنے سارے لوگوں کو کھانا کھلاتی رہتی ہے؟ وہ اپنے اپنے شوہروں سے اکثر پوچھا کرتی، آخر آپ کی ماں کے پاس کوئی جائیداد ہے؟ وہ کہتے کہ ہماری ماں کو صدقہ خیرات کرنے کا پہلے سے بہت شوق تھا، یہ خاندان ہی کچھ ایسا ہے، یہاں پر نیکیوں کو پسند کیا جاتا ہے، اس لیے تم سب وہی کرو جو ہماری ماں چاہتی ہے۔ شوہر اپنی اپنی بیویوں کو کہہ کر کام پر چلے جاتے۔ وہ اپنی ماں کے ویسے تو بہت فرما بردار تھے، لیکن ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی بیویاں سازش رچا کرتی تھیں اور اپنے شوہروں کے کان بھرا کرتی تھیں۔ وہ تینوں یہی چاہتی تھیں کہ کسی طرح اپنی بوڑھی ساس کو ہم اتنا تنگ کریں کہ وہ ہم سے پریشان ہو کر کہیں اور چلی جائے۔ پھر اللہ کی کرنی بھی ایسی تھی کہ وہ مل کر بھی کبھی اس کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن جب ساس اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو تینوں بہوؤں کو آپس میں اکٹھا بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ ایک بہو کہنے لگی کہ میں تو اب تھک چکی ہوں، پتہ نہیں اس بڑھیا سے کب ہمارا پیچھا چھوٹے گا، پتہ نہیں کب یہ دنیا چھوڑ کر جائے گی تاکہ ہم لوگ سکون کا سانس لے سکیں۔ چھوٹی بہو کہنے لگی کہ یہ بڑھیا روز روز بڑی دیگوں میں کھانا پکاتی ہے، جس
से हमारी नाक में दम हो गया है। बीच वाली बहू ने कहा कि इस बुढ़िया की वजह से हम अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल भी नहीं कर पा रहे, ना ही उनको अच्छी तरह से परवरिश पा रहे हैं। हमने इस फकीरों और मस्कीनों को हमेशा ही खाना खिलाती रहती हैं, अपने घर वालों को तो हम देखते ही नहीं। ये बुढ़िया किसी न किसी तरह यहाँ से बस निकल जाए। एक दिन की बात है कि छोटी बहू ने झूठ मूठ अपने हाथ पर पट्टी बांध ली, शोहर के आने का इंतजार करने लगी। छोटा बेटा जब दिन भर का थका हुआ घर आया तो अपनी बीवी का ये हाल देखकर परेशान हो गया। उसकी बीवी ने रोते हुए अपने शोहर से कहा, आज माँ जी ने अकेले मुझसे सारे घर का काम करवाया, यहाँ तक कि यहाँ पर 50 लोगों का खाना भी अकेले मैंने बनाया, खाना भी तैयार किया, जिसकी वजह से मेरा हाथ जख्मी हो गया और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मुझे इस घर में नहीं रहना। आपकी माँ ने हमें परेशान कर रखा है, ना अपनी खबर ले सकते हैं, ना अपने बच्चों की खबर ले सकते हैं। आप या तो हमें अलग कर दें या उनको किसी और जगह भेज दें। उनका बेटा माँ का इतना फर्मा बरदार नहीं था। अपनी बीवी की हालत देखकर उसे गुस्सा आ गया। फौरन माँ के पास गया और कहने लगा, आपने हम भाइयों की बीवियों को नौकर समझ रखा है, जो उनसे रोजाना 1000 लोगों का खाना पकवाती रहती हो। अब तो अगर इतना ही शौक है, अपने भाई के घर चली जाओ, वहां जाकर उनके साथ नेकी के काम करो, दीन की तबलीग करो। बेटे को पहली बार इस लहजे में बात करता हुआ देखकर माँ को बहुत तकलीफ हुई। माँ ने कहा, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है। वो कहने लगा कि हम तीनों भाई यही चाहते हैं, आप अपने भाई के घर चली जाओ। वो कहने लगी, मैं भाई के घर चली जाऊं जबकि तुम जवान बेटे हो, अभी मौजूद हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरी खिदमत करो। छोटा बेटा बोला, हमें कोई मसला नहीं, हम तो आपकी खिदमत कर ही रहे हैं और खिदमत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तो हमारी बीवियों को यहाँ की खादमा समझती हैं, इसलिए अब हम आपसे परेशान हो चुके हैं। या तो ये घर छोड़कर चली जाएं या तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अपने छोटे बेटे की जुबान से ये बातें सुनने के बाद माँ ने अपने बड़े बेटियों की तरफ देखा। वो भी अपनी बीवियों की तरफदारी कर रहे थे, उनकी ज़बान बोल रहे थे। माँ ने जब देखा तो उसे बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम सब यही चाहते हो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को तकलीफ में भी नहीं देख सकती। उन्हें ये खबर भी नहीं थी कि उनकी माँ कहाँ जा रही है। उनके जहन में बस यही बात थी कि वो अपने भाई के घर चली जाएगी, और कहाँ जा सकती है। माँ ने अपने कुछ जोड़े लिए और घर से चुपचाप निकल गई। वो कहाँ जा रही थी किसी को कुछ खबर नहीं थी। वो अपने भाई के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बिला वजह भाईजान को परेशान करना ये सही नहीं था। वैसे ही दीन के कामों में वो हर वक्त मसरूफ़ रहते थे। वो बहन अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो बस चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। रास्ते में एक खूबसूरत सा नौजवान नज़र आया, जो कि उस खातून की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। नौजवान ने करीब आकर माँ जी की तरफ देखा और कहा, आप अकेली कहाँ जा रही हैं? खातून कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं तो बस मंजिल की तलाश में हूँ, इसलिए सफ़र पर निकल पड़ी हूँ। उसने कहा, लगता है आप अकेली हैं, आपका कोई नहीं। वो खामोश हो गई। लड़का कहने लगा, कोई बात नहीं, यहाँ करीब ही मेरा एक छोटा सा मकान है जहाँ मैं अकेला रहता हूँ, आप आइए वहाँ मेरे साथ रहिए। खूबसूरत सा लड़का बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर बहुत ही छोटा लेकिन सुकून वाला था, जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। उस घर के सामने एक साफ शफाफ नदी भी बह रही थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, तुम बहुत अच्छी जगह पर रहते हो, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं? उसने कहा, नहीं माँ जी, मैं यतीम हूँ, इसलिए आप आज से मेरी माँ हैं। आप यहाँ पर
पर मेरे साथ रहेंगी मुझे अच्छा लगेगा। उस बूढ़ी औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। लड़के ने औरत को कमरा दिखा दिया और कहा आप यहाँ पर रहिए और अपनी इबादत कीजिए, जितना दिल चाहे नमाज पढ़िए। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। बूढ़ी खातून हैरान इस बात पर थी कि वो जवान होकर भी अल्लाह का नेक बंदा, इबादत गुजार था, हर वक्त नमाज अदा करता रहता, कभी घर में होता और कभी घर से चला जाता। वो वहाँ बहुत ही चुप हो गई थी। जिस माँ को उसके बेटे ही अपने घर से निकाल दें, वो माँ भला कैसे किसी और से कोई सवाल कर सकती थी। बस हर वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रहती, या अल्लाह तू मेरी नेकियों को जानता है, बस मुझे कभी रुसवा न करना, किसी का मोहताज ना बनाना। तू जानता है मुझे गरीबों को खाना खिलाना कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बेटों ने मुझे इसी वजह से घर से बाहर निकाल दिया। मैं उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करती, ना ही उन्हें बुरा भला कहती हूँ, ना ही उनके लिए कभी कोई बद्दुआ करूँगी। बस दिल उदास इसलिए होता है कि मैं यहाँ किसी को खाना नहीं खिला सकती। अब वो यही सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो वहाँ बहुत सारे फकीर और औरतें खड़ी थी। उन्हें देखकर वो औरत कहने लगी कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? वो कहने लगे कि हमने सुना है कि यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत ने कहा नहीं बेटा, यहाँ पर तो कोई भी खाना खिलाने वाला नहीं है, ना ही मैंने खाना बनाया है। वो कहने लगी कि अरे आप कैसी बातें कर रही हैं बूढ़ी माई, वो देखिए कि देगें पक रही हैं। बाहर जाकर देखा तो वहाँ वाकई बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा था। कौन पका रहा था कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो लड़का भी वहाँ मौजूद नहीं था। बहरहाल दस्तरख्वान तो लग चुका था। सब लोगों ने बैठकर पेट भर कर खाना खाया। बूढ़ी माँ ने भी उनके साथ मिलकर खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि या अल्लाह तूने मेरी दुआ को इस तरह सुना। मैं तो बस यही सोच रही थी, ये खाना खुद ब खुद तैयार भी हो गया। ये कैसे हुआ मैं नहीं जानती। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वो समझ रही थी कि ये दस्तरख्वान सिर्फ एक दिन के लिए लगा हुआ है, ऐसा नहीं था। वो जब भी फजर की नमाज पढ़ के उठती, बाहर देखती तो देगें पक रही होती थी, खुद ब खुद खाना तैयार होता, लोग वहाँ आते, लंगर चलता रहता और वो लड़का उस वक्त वहाँ से कहीं चला जाता। वो औरत समझ चुकी थी कि ये लड़का कोई अल्लाह का नेक बंदा है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता, इसलिए वो खामोश थी। खाना तो खुद ब खुद पक रहा था, बनाने वाला नजर नहीं आता था। इस बात की शोहरत पूरे गांव में हो गई। वो गांव भी जहां उस औरत के अपने बेटे रहा करते थे, तीनों बहू रहा करती थी। उनके कानों तक ये खबर पहुंची कि जंगल में एक ऐसा घर है जहां पर बस खाना ही बनता रहता है, हर वक्त देगे चढ़ी रहती हैं। गांव के जितने गरीब गुरबा, फकीर, मस्कीन, बेवा, यतीम, जिनके घर खाना नहीं होता, वो सब वहीं जाकर खाना खाने लगे। अब कोई भी खाली पेट नहीं रहता था, कोई भी भूखा नहीं सोता था। उन तीनों बहुओं ने सोचा चलो हम भी वहां जाकर देखते हैं ये कौन है जो इस कदर इतना बड़ा दस्तरख्वान लगा रखा है। एक दिन वो तीनों बहुओं अपने शोहर से छुपकर जंगल में पहुंची। वहां एक छोटा सा मकान उन्हें नजर आया। उस घर के अंदर कौन था ये कोई नहीं जानता था। घर के बाहर बड़ी बड़ी देगें पक रही थी, लोग भी खाना खा रहे थे। उनको भी खाने के लिए बुलाया गया। उन्होंने बहुत ही शक्ल अजीब सी बनाई और कहने लगी कि ये सदका खैरात वाला खाना हम नहीं खाते, हम कोई फ़कीर या बेकारी नहीं है। औरत ने कहा कि ऐसी बात नहीं, ये खाना बहुत शफा वाला है। हमने सुना है कि जो ये खाना खाता है वो शफायाब हो जाता है। वो कहने लगी कि हम इन बातों पर यकीन नहीं रखती, हम वैसे ही अपनी सास की वजह से बहुत तंग आ चुके हैं। फिर एक बहू बोली, अच्छा ये बताओ ये घर किसका है? ये बहुत ही अमीर और रईस आदमी का मालूम होता है जो रोज़ाना इतना बड़ा दस्तरख्वान बनाता है। दूसरी औरत कहने लगी, यहाँ कोई आदमी
نہیں ہے بلکہ ایک عورت رہتی ہے، سنا ہے وہ ضعیفہ ہے جن کو لوگوں کو کھانا کھلانے کا بہت شوق ہے۔ ان تینوں نے جب یہ سنا تو وہ فوراً سے چیخ اٹھی، یہ سوچ کر کہ وہ ہماری ساس تو نہیں بلکہ وہ تو اپنے بھائی کے گھر دوسرے گاؤں میں جا چکی ہے۔ چھوٹی بہو نے کہا کہ چلو گھر میں چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ چپکے سے اس گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ اس کو ایک کمرے سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی، لیکن وہ کسی عورت کی نہیں بلکہ مرد کی آواز تھی۔ وہ تینوں وہیں پر کھڑی ہو کر سوچ رہی تھیں کہ کمرے سے ایک چمکتے نورانی چہرے والے سفید داڑھی والے بزرگ باہر نکلے، جن کے چہرے پر اتنا جلال تھا کہ انہیں دیکھتے ہی تینوں کانپ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ عورتیں بولی، ہم کوئی بھی نہیں ہیں، ہم تو کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ بزرگ نے پوچھا، تو کھانا کھا لیا یا نہیں؟ جی ہم نے کھا لیا ہے۔ ان تینوں نے ایک زبان صاف جھوٹ بول دیا اور وہاں سے چلی گئیں۔ باہر آ کر چھوٹی بہو کہنے لگی کہ ہائے، میں تو ڈر ہی گئی تھی، کہیں ہماری ساس تو نہیں، یہ تو کوئی اور ہی بڑی بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ وہ تینوں اپنی ساس کا ذکر کر کے مذاق اڑانے لگی، اور بڑھیا نے تو ہمیں اتنا پریشان کر دیا تھا، بس ہمیشہ وہی ذہن پر سوار رہتی ہے۔ اچھا ہے وہ ہمیں نہیں ملی اور ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، نہ جانے کون سے صدقے خیرات والا کھانا ہو۔ وہ تینوں اسی طرح بس زبانی گستاخی کر رہی تھی۔ ایک بہو اچانک سے چیخ پڑی، ارے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دونوں بہوؤں نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کا چہرہ بدل رہا تھا۔ دونوں بہوؤں کو بھی اپنے اندر بدلاؤ محسوس ہونے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں کتیا کی شکل میں بدل گئی، یعنی وہ تینوں عورتیں اب کتیا بن چکی تھیں۔ اب ان کی زبان جو تھی وہ انسانی کہاں رہی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچی۔ وہاں پہنچ کر ان کے شوہر بیٹھے ہوئے تھے، جو تین کتیا کو گھر میں گھستے دیکھ کر ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر بھاگے۔ وہ ڈری سہمی وہاں سے بھاگی، کسی دیوار کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی انسان سے جانور کیسے بن گئی۔ دیوار کے پیچھے چھپ کر وہ تینوں رونے لگی۔ شوہروں کی آواز آنے لگی کہ ایک شوہر کہہ رہا تھا، نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں، ان کی کوئی خبر بھی نہیں، ہر جگہ تلاش کر لیا، آخر ہمیں کیوں نہیں مل رہی، کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہ تینوں ان کے سامنے آئی تو پھر وہ تینوں مل کر انہیں مارنے اور بھگانے لگ جاتے، اس لیے وہ مجبوراً ان کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ انسان سے ایک جانور بنتے ہوئے ان کو محسوس ہو رہا تھا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ عطا کیا ہے، اور ہم قدر نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں۔ یہاں پر تینوں بیٹے پریشان تھے۔ اپنی ماں کی تو انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، لیکن بیویوں کی ضرور فکر تھی۔ آخر وہ تینوں کہاں چلی گئیں؟ دن گزرتے رہے، لیکن ان کو تلاش کرنے پر بھی ان کو بیویاں نہیں نظر آ رہی تھیں، جبکہ تینوں کی بیویاں وہیں پر کھڑی رہتی، بھوکی رہتی، اور وہ بھگا دیتے تھے ان کو۔ بچے بھی ماں کو پہچان نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی شوہر اپنی تینوں بیویوں کو پہچان رہے تھے۔ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اس حالت میں کئی دن گزر گئے، سب سے چھوٹی بولی کہ اپنی زبان میں دونوں کہنے لگی کہ ہم جنگل میں چلتے ہیں، اسی جگہ پر جا کر کھانا کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ہماری اصلی صورت مل جائے، ہم انسانی حالت میں لوٹ آئیں۔ یہ سن کر وہ تینوں جنگل کی طرف چلی گئیں۔ وہاں پر اب بھی کھانا کھلایا جا رہا تھا، اور ان غریب بھکاریوں نے ان کو وہاں سے بھگانا شروع کر دیا۔ کوئی لات مار رہا تھا، کوئی دھکا دے رہا تھا، کوئی ڈنڈا لے کر دوڑا رہا تھا، کیونکہ وہ انسان نہیں جانور تھی۔ اب انہیں پتہ چل رہا تھا کہ جو رویہ فقیر غریب کے ساتھ وہ کرتی رہی، اب انہی کے ساتھ پلٹ کر ان کو مل رہا تھا۔ تینوں اپنے آنسو بہانے لگی، کسی طرح اگر تھوڑا سا کھانا ان کو مل جائے۔ اتنے میں وہی خوبصورت لڑکا ان کو نظر آیا اور کہنے لگا، لگتا ہے تم تینوں بھوکی ہو، مگر یہ کھانا
उनके लिए है जिनके दिल के अंदर दर्द है, हर एक का दर्द, जो तुम लोगों के अंदर नहीं है, जिन्होंने हमेशा लोगों के साथ बुरा रवैया रखा, जो एक ज़ईफ़ा का दिल चोर चुकी हैं। वो तो वैसे ही अपनी इस हालत से परेशान थी, अब ना समझने की कैफियत में उस नौजवान को देख रही थी। नौजवान ने कहा कि मुझे पता है तुम लोग कभी इंसान थी और ये तुम्हारी शक्लें तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से बिगड़ी हैं। चलो मेरे साथ चलो। उन तीनों को पकड़कर वो घर के अंदर लाता है। वहाँ पर वही बड़े बुजुर्ग यानी अल्लाह वाले मौजूद थे। वो मुस्कुराए और कहने लगे कि अगर तुम तीनों उस दिन अकड़बाजी ना करती और ये खाना खा लेती तो यकीनन तुम्हारा हाल ये ना होता, लेकिन तुम क्यों वो खाना खाती? वो तो गरीबों और मस्कीनों का था। तुम एक भिखारियों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करती और जो अल्लाह की नेक बंदी उनको खाना खिलाया करती थी, तुमने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो तीनों जानवर बनी क्या कहती? अल्लाह वाले की बातें सुनकर बस आंसू बहाती चली जा रही थी। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह के हुक्म से तुम इंसानों की तरह बोलने लग जाओ और कहो अपने जुर्म के बारे में। अल्लाह पाक के हुक्म से वो जानवर इंसान की तरह बोलने लगी। छोटी बहू ने कहा कि हम मानते हैं हमने हमेशा गरूर किया, तकब्बुर किया और एक बूढ़ी माँ का हमने दिल दुखाया, उससे नफरत की, हम उससे हसद की आग में जलती थी। लेकिन आप कौन हैं और आपको ये सारी बातें कैसे पता हैं? अल्लाह वली ने कहा कि वो बूढ़ी माँ जिसका तुमने दिल दुखाया, उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसके बेटों को उसके खिलाफ वरगराया, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। वो औरतें बोली, क्या वो आपके पास नहीं गई थी? बुजुर्ग बोले, नहीं, वो मेरे पास नहीं आती, वो आ ही नहीं सकती थी। वो खुदा तरस औरत, खुददार औरत थी। वो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसका भाई उसे पाले। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी बहन के पास मैंने अपना खास आदमी भेजा हुआ था जो तुम लोगों को नजर नहीं आता था, और जब मेरी बहन मुश्किल में आई तो उसने ही मेरी बहन को इस घर में ठहराया। मुझे अपने इल्म के जरिए पता चल चुका था कि तुम लोगों ने बदनाम करके मेरी बहन को यानी अपनी बूढ़ी माँ को उस घर से निकाल दिया है, इसलिए मैंने अपने एक खादम को अपनी बहन की खिदमत के लिए लगा रखा था। तुम लोग सोचती हो ना कि मेरी बहन इतने लोगों को खाना कैसे खिला देती है? उसके पास कौन सी जायदाद है? उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन ये भी अल्लाह का काम है, उसकी अता ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जब कोई नेक बंदा अल्लाह ताला की राह में एक पैसा खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे 10 गुना ज़्यादा अता फरमा देता है। हम बेशक दूसरे गांव में रहते थे, लेकिन हमारी नज़र अपनी बहन पर थी, इसलिए हमने सोचा हमारी बहन को तुम लोगों ने दर्द दिया तो हम खुद चल कर आए। लेकिन ये जो तुम्हारा हाल बना है ये सब अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई बद्दुआ शामिल नहीं है। अगर तुम इस दिन खाना खा लेती तो तुम ये जानवर ना बनती। तुमने गरूर तकब्बुर किया और गरूर की सज़ा तुमको बहुत ही भयानक मिली। अल्लाह वाले की बातें सुनकर वो धारे मार मार कर रोने लगी और कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें एक बार माँ जी से मिला दीजिए, हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बेशक हम जिंदगी में कभी इंसान न बने। इस बीच हमें एहसास हो गया है कि इंसान को अल्लाह पाक ने जो मर्तबा दिया उस पर वो गरूर कर ले तो वो उस जगह जाकर गिरता है, और वही हाल हमारा हुआ है। ना हमारा शौहर हमें पहचानता है, ना बच्चे पहचानते हैं, हम घर के ना रहे ना घाट के रहे, इसलिए एक बार हमें माँ जी से मिला दीजिए, हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो अल्लाह वाले की पुरजलाल आंखों में वो देख नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ऐ नौजवान, जाओ जाकर हमारी बहन को बुला कर लाओ। उनकी वालदा को बुलाया गया, जिनकी आंखों में ढेरों आंसू थे। वो तीनों कहने लगी कि माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहकर वो तीनों उनके कदमों पर लिपट गईं। वो अल्लाह वाली खातून थी, किसी को माफ़ करना ना करना तो अल्लाह का काम है। वो कहने लगी कि बहू, मैंने तुमसे कभी कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की थी, ना ही मैंने तुम लोगों से कभी कोई गिला शिकवा किया।
किया, ना ही मैंने तुम लोगों के हक में कभी कोई बद्दुआ की। मैं तो सिर्फ सदका और खैरात इसलिए करती हूँ कि ये मौत और बुरी मौत को टालता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करती थी ताकि मेरे बच्चे इन इल्फाज से बच सकें, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ही घर से निकाल दिया। मेरे रब ने मुझे बेसहारा नहीं छोड़ा, इसलिए मेरा दिल बिल्कुल साफ है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं। एक बहू कहने लगी कि माँ जी, आपने हमें माफ़ कर दिया है या नहीं? आप कितने बड़े दिल की मालिक हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं, हम उम्र भर भी इसी शक्ल में रहेंगी क्योंकि यही हमारी सज़ा है। ये कहती हुई वो रोती हुई वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इस हालत में नहीं जा सकती। तुम लोग यहाँ से ऐसे नहीं जाओगी, बल्कि तुम लोगों को अपने किए की शर्मिंदगी है। तुम लोगों ने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया है और मुझे देखकर अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपने भाई अल्लाह वाले की तरफ देखा और कहने लगी कि इनके हक़ में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इन्हें माफ़ फरमा दे। बुजुर्ग कहने लगे कि इन तीनों से कहो कि जाएं, अपने शोहर को बुलाकर यहाँ लाएं। वो तीनों अल्लाह वाले के हुक्म पर अपने शोहरों को बुलाने के लिए चली गईं। पहले तो उनके शोहरों ने उनको वहाँ से मार कर भगाना चाहा, लेकिन जब वो तीनों बोल पड़ी तो उनको यकीन आ गया कि ये उनकी बीवियाँ हैं और फिर उनके कहने पर वो तीनों उस घर में आ गए जहाँ पर वहाँ उनकी माँ मौजूद थी, उनके मामू जान मौजूद थे। माँ को देखकर वो तीनों बेटे बहुत ज़्यादा शर्मिंदे हुए। मामू जान ने कहा कि तुम लोग बेटे होने का फ़र्ज़ भूल गए, एक बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया। तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे थे? फिर तुम्हारी बीवियों को सज़ा तो भुगतनी ही थी। बुरा तो तुम्हारे साथ भी हो जाता, लेकिन तुम्हारी माँ के दिए हुए सदके ने तुम तीनों को बचा लिया और तुम्हारी बीवियाँ ना बच सकी। अब तुम लोग क्या चाहते हो? बेटे ने कहा, माँ से माफ़ी मांगना चाहते हैं। माँ ने कहा कि बेटा, माफ़ तो मैंने तुम्हें पहले ही कर दिया था। भाईजान, अब आप भी इन्हें माफ़ कर दीजिए और इनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह वाले ने उनके हजूर अल्लाह से दुआ करनी शुरू कर दी कि या अल्लाह, इनकी बिगड़ी शक्लें इनकी अपनी वजह से हैं, बस यही इसकी ज़िम्मेदार हैं। ये खुद अपने आप पर जुल्म कर रही हैं। बेशक इंसान जालिम है, अपने ऊपर खुद जुल्म करता है, पर मौला तो माफ़ करने वाला मेहरबान है। सदका खैरात के तोफ़ैल ही इनको माफ़ कर दे। अल्लाह वाले की दुआ कबूल हो गई। वो तीनों फिर से कुतिया से इंसान बन गई। वो सास कहने लगी कि बेटियों, मैंने तुमको हमेशा अपनी बेटी समझा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपनी माँ नहीं समझा। क्या आप भी तुम मुझे माँ कहती हो या नहीं? वो कहने लगी कि माँ जी, आप ही हमारी माँ हैं, हम सच्चे दिल से आपसे राज़ी हैं, बस आप भी हमसे राज़ी हो जाएं। चलें, आप हमारे साथ घर चलें। वो आपका घर है जिसको आपने बसाया है, आप ही के दम से वहाँ रौनक है। अब हम सब मिलकर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे। अल्लाह वाले ने खुश होकर वो देगें तोहफे के तौर पर अपनी बहन को दे दी, जिसमें जब भी खाना पकता ही रहता था, कभी भी वो खाना ख़त्म नहीं होता था। बेशक नेक अमल आपको हर बुरी मुसीबत और बला से बचाता है। हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए।